Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about the GST late fees waiver scheme provided by the GST Council and the due dates extended by the GST Council in its 43rd GST Council meeting which was held on 28th of May 2021. So friends, first of all, we will see that what we are going to discuss here point wise. First of all, we will discuss about the GST amnesty scheme 2021. Then we will discuss about the rationalization of late fees for GST 3B and 1. Then we will discuss about rationalization of late fees about GST 4 जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है, एक एनुअल रिटर्न है। जीएसटी 7 जो कि अवार्डर्स के लिए है, उसमें भी लेट फीस की कोई स्कीम लाई गई है। Various due dates have been extended by the GST Council, and various other relaxations are also provided. And the last one is about GST 9, 9A and 9C for financial year 2021. तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा जीएसटी एमनेस्टी स्कीम which is the much awaited scheme. Last year also government has came up with the GST amnesty scheme, although there is a slightly different scheme this time because last year की जो amnesty scheme थी उसमें जो नील फाइलर्स है, नील टैक्स लाइबिलिटी वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जीएसटी लाइबिलिटी जो है लेट फीस की वो नील रखी गई थी मैक्सिमम कैपिंग। बट दिस टाइम जीएसटी 3B जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 2021 तक जो अब फाइल करेगा उसके लिए मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ रखी गई है, 250 CGST एंड 250 SGST। और ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है उनके लिए लेट फीस मैक्सिमम 1000 रुपीज़ रखी गई है। तो जो टैक्स पेयर्स 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में अपनी इन 3Bs को फाइल करता है वो इस स्कीम का लाभ ले पाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस। तो इससे पहले हमने बात करी एमनेस्टी स्कीम की। अब ट्रेड इंडस्ट्रीज की तरफ से और वेरियस प्रोफेशनल की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर ये बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि जो लेट फीस चार्ज कर रही है गवर्नमेंट इन 3B which is very higher side in very higher side, so it is to be rationalized. So the government this time has also considered this request, and late fees has been capped at maximum at rupees 500 for nil tax liability taxpayers, and late fees of rupees 2000 has been capped at maximum for the taxpayers whose turnover is up to 1.5 crore in last financial year. So this time the late fees is linked to the turnover or the tax liability. Earlier it was not so because the late fees was not linked to any tax liability or any kind of turnover, but it was simply maximum late fees was 10,000, 5,000 CGST and 5,000 SGST. तो इस बार जो गवर्नमेंट ने ये रैशनलाइजेशन किया लेट फीस को लेकर के, ये एक वेलकमिंग मूव है। और जो लेट फीस है अप टू 1.5 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए वो 2,000 रुपये रखी गई। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए 5,000 रुपये मैक्सिमम फीस है और इससे ज़्यादा वालों के लिए 10,000 रुपये रखी गई है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट all these reliefs are for prospective periods only. So for the earlier period, we can get benefited by the amnesty scheme, and for the periods coming, our late fees has been reduced or rationalized. For composition taxpayers जो कि GSTR 4 फाइल करते हैं एनुअली, उनकी लेट फीस भी एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है
जो कि नील टैक्स लायबिलिटी वाले टैक्स पेयर्स के लिए 500 रुपये रखी गई है, और जिनकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनती है उनके लिए मैक्सिमम 2000 रुपये रखी गई है। ये भी प्रोस्पेक्टिव पीरियड से अप्लाई होगा। अवार्डर्स जो कि GST 7 फाइल करते हैं मंथली, इनके ऊपर लेट फीस अभी तक 200 रुपये पर डे चार्ज की जा रही थी। इसको भी रैशनलाइज करते हुए 50 रुपये पर डे तक रिड्यूस किया गया है, एंड मैक्सिमम कैप भी इस पर लगा दी गई है जो कि 2000 रुपये है। Obviously, it will also apply from prospective periods only. Further due date relaxations due to COVID-19. Now we will discuss about the further due date relaxations due to COVID-19. For taxpayers having turnover up to 5 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है, उनके मार्च 21 में पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगले 45 दिन तक 9% इंटरेस्ट लगेगा। 60 दिन तक, ड्यू डेट से 60 दिन तक उनकी लेट फीस वेव कर दी गई है। इसी प्रकार अप्रैल के लिए पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगले 30 दिन तक 9% इंटरेस्ट लगेगा, और टोटल 45 डेज तक के लिए लेट फीस वेव कर दी गई है। सेकेंड मई 21 के लिए पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। अगले 15 दिनों के लिए 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और 30 दिन के लिए लेट फीस वेव कर दी गई फ्रॉम द ड्यू डेट। और जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए मई 21 में पहले 15 दिन के लिए 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और 15 दिन के लिए लेट फीस भी वेव कर दी जाएगी। नाउ वी कम टू द CMP 08 फाइलर्स। इसलिए मार्च 21 क्वार्टर का पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद 45 दिन तक 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अदर रिलैक्सेशंस which are also related to returns or some other relaxations are also there. GSTF 1 और IFF for May 21 has been extended for 15 days. GSTF 4 for financial year extended till 31st July 2021. Although it was earlier extended, ITC 04 for quarter ending March 21 extended till 30th June 2021. Cumulative application proof of Rule 36 for ITC of April to June period. This is really a very welcoming move by the government, बिकॉज जो 5% एक्सिस ITC लेने वाले टोबी से 5% ज़्यादा ITC हम खाली ले सकते हैं, तो वो हमें पहले मंथली देखना होता था, अब हम उसको क्वार्टरली देख सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जनवरी. July onwards will again start it to check on monthly basis. Again, a relaxation is relating to the companies or LLPs who filing their returns through EBC instead of BSC till 31st August 2021. Although last year also such relaxation was provided by the government. And one more important change जो कि होना ही था, retrospective amendment providing for interest on net liability. गवर्नमेंट ने पहले कई सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस इशू कर दिए थे ऑन दियर ग्रॉस लाइबिलिटी इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए. सो आफ्टर वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी आए कि ये हो नहीं सकता, जो लाइबिलिटी है नेट उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है. और बाद में CBIC ने भी अपने सेक्शन में इसको अमेंड कर दिया था, बट प्रोस्पेक्टिवली किया था. नाउ दे हैव एग्रीड टू डू इट रेट्रोस्पेक्टिवली. Last one is relating to GST 9A 9C for financial year 2021. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 9 और 9A के लिए रिलैक्सेशन 17 18 में नहीं थी, 18 19 19 20 के लिए दी गई थी, वो सेम कंटिन्यू रखी गई है 20 21 के लिए भी. तो जो टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ कम है, उनके लिए ये GST 9 और 9A ऑप्शनल रखी गई. 9C is required to be filed by taxpayers whose annual aggregate turnover is exceeding 5 crore. इनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा 9C तो करनी है,
लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे. So there is no need to get it certified from the chartered accountant now. So this is all for today's video. Thanks for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.